Good evening, students. Today we are going to discuss the topic chemical properties of metal. This topic belongs to the chapter number 3, metals and non-metals. So let's start the topic chemical properties of metals. In the chemical properties of metal, firstly we will see that what is the nature of metal. As we know that metals lose electron, that's why the nature of metal is electropositive nature. I am repeating myself that the metals have the ability to lose electrons, that's why they are electropositive in nature. See the example. We are taking sodium. Sodium is a metal. If we will see the electronic configuration of sodium metal, so it will be 2, 8, 1. The electronic configuration of sodium is 2, 8, 1. In the electronic configuration of sodium, we can see that sodium want to lose one electron to complete its octet. That's why it loses one electron and becomes Na plus. And now the configuration of Na plus 1 is 2, 8. It means that now it is stable. So here we can see that sodium being a metal lose the electron, that's why it is electropositive in nature. And whenever the metal lose the electron, they form cations. The ions which have positive charge are called cation. In this example, we can see that sodium have plus charge, that's why it will be called cation, and that's why the metals are electropositive in nature. Second, reducing agents. Metals are good reducing agents. Why? Because when any metal, now we can take any other example, when any metal, for example magnesium, the electronic configuration of magnesium is 282. Magnesium wants to lose 2 electron. Whenever any metal loses electron, it means it will be oxidized. Because we know that what is the definition of oxidation? ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि whenever any substance lose electron, that means it will be oxidized. So we can write here that metals are oxidized. Whenever the metal will be oxidized, it means that they are good reducing agents. Repeating, whenever any metal will lose electron, it means it will be oxidized, and जिसका oxidation होता है that will be reducing agent always, because जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होगा वो सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, और अगर खुद ऑक्सीडाइज होगा, सामने वाला रिड्यूस होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि वो सब्सटेंस क्या होगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स होगा. तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स हमारे पास आ गए. फर्स्ट कि मेटल ऑलवेज लूज इलेक्ट्रॉन, दे फॉर्म cations, that's why they are electropositive in nature, they get oxidized and they are good reducing agents. क्लियर है? ये 4 पॉइंट्स सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3. The third point is reaction of metals with oxygen. You can write with air also, because in air basically we take oxygen. Okay, reaction of metal with air or oxygen. Hanji, what happens when the metals react with oxygen or burnt in air? So here see the general formula
general formula that when metal react or combine with oxygen, they form metal oxides. I am repeating myself. Whenever any metal combine with oxygen, it form metal oxide. We can take the examples. For example, sodium when react with oxygen, it will form sodium oxide, that is a metal oxide. Any other example? Mg, magnesium, when react with oxygen, it will form magnesium oxide. Copper, when react with oxygen, it will also form copper oxide. So these all are the metals when combined with oxygen or burnt in air, they form their respective metal oxides. But तो बड़ा easy सी बात थी. But now the question arises that will all the metals combine with oxygen at the same rate? Will all the metal combine with oxygen at the same rate? So answer is no. There are different metal which react at the different rate with the oxygen because there is a reactivity series of the metal. What do you mean by reactivity series of the metal? Reactivity series of the metal is the arrangement of metal in order of their decreasing reactivity. They are put in the vertical column. In that we will read that in the vertical column at the top metal will be more reactive and the last metal will be least reactive. So we will see the reactivity series now. Firstly, see this again. Whenever the metal will combine with oxygen, it will form metal oxide. We have taken the example, but now the question is that all the metals will not combine with oxygen at the same rate. तो उसका आंसर करने के लिए हम बीच में एक टॉपिक पढ़ेंगे, that is reactivity series. इस टॉपिक को मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगी. फर्स्टली हम रिएक्टिविटी सीरीज को देखेंगे. उसको करने के लिए हमें इसको पढ़ना जरूरी था ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन फिक्स हो सके कि हाँ जी क्यों रिएक्टिविटी सीरीज की जरूरत पड़ी. तो इसीलिए मैंने आपको दिखाया कि these are three metal, they are combining with oxygen but they will combine at a different rate. तो ये चीज ही हमें कहाँ से पता चलेगी? इस बात का आंसर ही हमें कौन देने वाला है? रिएक्टिविटी सीरीज देने वाला है. ठीक है, तो अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे, रिएक्टिविटी सीरीज. Reactivity series of metals. It is the arrangement. It is the arrangement of metals in a vertical column. In a vertical column in order of their decreasing reactivity. Decreasing reactivity. So I am repeating that. What is reactivity series? Reactivity series is an arrangement that of metals in a vertical column in order of their decreasing reactivity. Means to say reactivity series जो है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें मेटल को वर्टिकली पुटअप किया गया है उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में. ठीक है, तो लेट्स सी द रिएक्टिविटी सीरीज नाउ. पोटेशियम, सोडियम, calcium, magnesium. We are writing the name also. Potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc,
लेड, आयरन, लेड। हाँ जी, इसके बाद मैं यहाँ पर राइट करूंगी, इसको देख लीजिए एक बार। वी हैव सम मेटल इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, iron, lead. After that the metal that come copper, mercury, copper, Cu, mercury, Hg, silver, Ag, gold, Au, platinum, Pet. हाँ जी, these all are the metal which are written in their decreasing order of reactivity. फर्स्ट ये है, लास्ट ये है, लेड के बाद कॉपर है, बट अब इसके बीच में एक सस्पेंस है। लेड और कॉपर के बीच में आई एम राइटिंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। हाँ जी, नाउ यू विल से दैट मैम हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल, इट इज अ नॉन मेटल, बट हाइड्रोजन इज रिटन, दैट्स व्हाई बिकॉज hydrogen have the properties of metals also. There are some properties of hydrogen which can match with the metal, that's why we are combining the metal with hydrogen also. Now listen to me, the metals which are at upper side of the hydrogen, जो metal hydrogen से upper हैं, they are more reactive than hydrogen, but the metal which are at the lower side of the hydrogen, they are less reactive. For example, zinc is more reactive than hydrogen, but copper is less reactive than hydrogen. ठीक है, तो ये है मेटल का रिएक्टिविटी सीरीज। ड्यू टू दैट वी कैन टेल कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन जल्दी रिएक्शन करेगा, कौन कम रिएक्टिव है, कौन धीरे रिएक्शन करेगा। तो नाउ कम टू अवर टॉपिक विच वाज गोइंग ऑन, मेटल रिएक्शन विद ऑक्सीजन। उस टॉपिक को हम फिर से डिस्कस करेंगे क्योंकि उस टॉपिक में हमें रिएक्टिविटी सीरीज की नीड थी। हाँ जी, हम अपने पॉइंट्स पे फिर पे आ रहे हैं कि मेटल, रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। हमने बात की थी कि जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या देता है, मेटल ऑक्साइड देता है ना। अब हमें बात करनी है कि विच मेटल विल रिएक्ट फास्टली और विच मेटल विल रिएक्ट स्लोली और विच मेटल विल नॉट रिएक्ट इवन। ठीक है, तो अब हमने बात करनी है सबसे पहले सोडियम और पोटेशियम मेटल्स की। Sodium and potassium metals, they are most reactive metals. Sodium and potassium are most reactive metal when they react with oxygen. जब ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं तो they catches fire. They catches fire. They are most reactive metal when they combine with oxygen, तो they catches fire when combine with oxygen. That's why, अब देखो अगर इसको अपने ओपन में रखेंगे, ओपन में खुला रख देंगे सोडियम और पोटेशियम मेटल को, तो they will react with oxygen and they will catch fire. इसीलिए they are immersed in kerosene oil. So they are immersed in kerosene oil. This is the NCERT blue question of chapter number 3 of class 10 science, that why the sodium metal is immersed in kerosene oil. तो आप आंसर क्या दोगे, सोडियम being most reactive metal when combined with oxygen catches fire, that's why it is immersed in kerosene oil. Okay, now come to the second point. अगर आप सोडियम और पोटेशियम के बाद थोड़ा मॉडरेटली जो थी, मॉडरेटली थी मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक। अगर हम इनकी बात करें तो जो ये सभी मेटल हैं, ये ऑक्सीजन के साथ जब कंबाइन होती है, व्हेन कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म
a layer of respective oxides on it. हाँ जी, अब इसके का मतलब समझिए क्या कहना चाहता है. जैसे जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये क्या करती हैं, ये जब ओपन में रखी जाती हैं तो ये एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जो क्या करती हैं, अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना लेती हैं. जैसे कि हमारे पास एक क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 1 में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का. फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाई शुड मैग्नीशियम बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग. तो हमने आंसर ये दिया था कि मैग्नीशियम इज अ reactive metal, that's why when it is kept open in air it form layer of oxide on it, that's why before burning we should clean it. तो वही बात यहाँ पर भी आती है कि जब इसको ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करवाया जाएगा तो पहले इसको क्लीन किया जाएगा, क्योंकि ये जब ओपन में रखी जाती हैं तो लेयर बना लेती है ऑक्साइड की अपने अपर सरफेस पे, सो दैट ये दोबारा रिएक्शन नहीं कर पाती, उन्हें पहले क्लीन करना पड़ता है. अब आ जाइए लास्ट थर्ड, अगर हम बात करें कॉपर की, आयरन की, बेसिकली हम कॉपर की बात करेंगे. कॉपर भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कॉपर ऑक्साइड देता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, बट कॉपर विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन विद हॉट एयर ओनली. हॉट एयर पास आउट की जाती है तभी कॉपर रिएक्शन करता है, क्योंकि इट इज लेस रिएक्टिव मेटल, बहुत लेस में आ रहा है ना ये, इसीलिए ये सिर्फ हॉट एयर के साथ रिएक्शन करेगा. नंबर 4 दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर फर्स्ट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फोर्थ भी इंपॉर्टेंट है कि जो मेटल्स हैं सिल्वर, जो मेटल है गोल्ड, आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, सो दे डू नॉट रिएक्ट with oxygen even at high temperature. But I am saying that silver and gold, silver और gold जो metals हैं, they are least reactive metal. reactivity series में सबसे नीचे आती है ये metal, इसीलिए ये किसी भी कंडीशन में कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती हैं. एंड वन मोर थिंग, दैट्स वाई सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज्ड टू मेक ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी. इसीलिए बनाई जाती है इनकी ज्वेलरी, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ कभी रिएक्शन नहीं करेंगे, कभी खत्म नहीं होगा सोना चांदी, इसीलिए इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है. और इनकी शाइन भी लूज नहीं होती है अगर हमारा सिल्वर गोल्ड जो है वो प्योर है. हाँ जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक के टॉपिक में किसी को डाउट है तो you can ask me in the live class. Okay, now come to the next topic, that what is the nature of metal oxide. अब तक हमने ये तो पढ़ लिया कि मेटल ऑक्साइड क्या है, क्या क्या उनकी रिएक्टिविटी है, क्या क्या उनका नेचर है, ये सब बातें हमने कर ली है. अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड. मेटल ऑक्साइड की क्या नेचर है, इसके बारे में पढ़ना है अपने को. अभी चल रहा है हमारा फर्स्ट पॉइंट ही है, फर्स्ट पॉइंट के अंदर ये सब चल रहा है, नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड्स. इन चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेसिस एंड सोल्ट हमने ये बात की थी कि जो मेटल ऑक्साइड है उनका नेचर जनरली इनका नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, और इस बात में कोई दो राय नहीं है. बिल्कुल मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें K2O, Na2O, तो these are metal oxides and when they are put into water, जब इनको वाटर में पुट करते हैं, देखो आपको मालूम है ये चीज, यू नो वेरी वेल कि एसिड और बेस शो देयर बिहेवियर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो अब इनको वाटर में पुट करेंगे तभी पता चलेगा ना कि एसिड है या बेस है. हाँ जी, तो whenever these metal oxides are put in water, तो what will form KOH and here NaOH. अब KOH भी क्या है, एक बेस है, NaOH भी क्या है, एक बेस है. तो there are other metals also, metal oxide also, which are also basic in nature. Like for example हम बात करें MgO, CaOH twice, CaO. Whenever they are put into water, जब इनको भी वाटर में पुट किया जाता है तो दे ऑल्सो फॉर्म
magnesium hydroxide and calcium hydroxide respectively, तो they are also considered as base, but there is some difference. जो first two reaction है वो alkali metals है, इसीलिए ये वाले जो बेस है ये वाटर में प्रॉपरली डिसॉल्व होते हैं, इसीलिए ये एल्कली हो जाती है, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा हुआ है. बट ये एल्कली नहीं है. क्यों एल्कली नहीं है? क्योंकि नॉट डिसॉल्व प्रॉपरली, ये वाटर में डिसॉल्व प्रॉपरली नहीं होता है, इसीलिए ये एल्कली नहीं है. ये वाटर में प्रॉपरली डिसॉल्व होता है, इसीलिए ये एल्कली है. फिर से देख लीजिए कि मेटल ऑक्साइड्स का नेचर क्या होता है. जनरली द मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर बिकॉज whenever they are put into water they form hydroxide ions, and the substances which form hydroxide ions in water are called bases. But Na and K यानी कि सोडियम एंड पोटेशियम ऑक्साइड्स when put into water they dissolve properly in the water, that's why they form alkali. हमें मालूम है चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा था कि जो KOH और NaOH है वो एल्कली होते हैं और बाकी जो सभी बेस ही होते हैं क्योंकि वो वाटर में प्रॉपरली डिसॉल्व नहीं होते. ठीक है. अब यहाँ पर भी एक थोड़ा सा सस्पेंस है, उस सस्पेंस को देखिए. मैं अब सारे रिएक्शंस को रब कर रही हूँ. अब अपने को एक थोड़ा सा सस्पेंस देखना है. नोट लगाकर भी हम इस बात को मेंशन कर सकते हैं कि देयर आर टू मेटल ऑक्साइड विच आर Al2O3 यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ZnO यानी कि जिंक ऑक्साइड. अब ये वाले जो दो जिनको मैंने बॉक्स में लिखा है, ये जो दो मेटल ऑक्साइड है इनका नेचर बेसिक नहीं है, इनका नेचर है एम्फोटेरिक. दे आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड. अब ये एम्फोटेरिक क्या है भाई? एम्फोटेरिक का मीनिंग है जिसका नेचर बेसिक भी होता है और जिसका नेचर एसिड भी होता है. एम्फोटेरिक वो है जिसका एक फिक्स नेचर नहीं है. अब ये जो दोनों ऑक्साइड्स हैं ये बेस के साथ एसिड बन जाएंगे और एसिड के साथ बेस बन जाएंगे, यानी कि दे शो बेसिक नेचर एज वेल एज एसिडिक नेचर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड. मैं आपको रिएक्शन करके भी बता देती हूँ. फॉर एग्जांपल जिंक ऑक्साइड प्लस HCl. अब देखो जिंक ऑक्साइड जब HCl यानी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और यही अगर जिंक ऑक्साइड NaOH बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा. अब देखते हैं इनके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे. बेस और एसिड मिलके ऑलवेज क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड वाटर. तो पहले वाटर निकाल देते हैं, बचा क्या? Zn और Cl. तो वी विल हैविंग ZnCl2. जिंक क्लोराइड बन जाएगा सॉल्ट और वाटर रिलीज हो जाएगा. नाउ इन द सेकंड कंडीशन ZnO is behaving like an acid और NaOH की इसके साथ अगर हमें रिएक्शन करनी है तो वाटर रिलीज हो जाएगा. बनेगा क्या? Na2ZnO2 और इसका नेम होता है सोडियम जिंकेट. एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन आपके एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो यू कैन चेक फ्रॉम देयर आल्सो. सेम बात उसमें ही होगी कि व्हेनेवर द एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विद एसिड तो इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इट विल बिहेव लाइक बेस. बट व्हेन द एल्यूमिनियम ऑक्साइड विल रिएक्ट विद NaOH बेस तो इट विल बिहेव एज एन एसिड और फॉर्मेशन सॉल्ट एंड वाटर की हो. ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो चुका है जिसमें हमने ये पढ़ा कि whenever the metal combine with oxygen तो क्या क्या हुआ? मेटल ऑक्साइड बना, फिर मेटल ऑक्साइड की रिएक्टिविटी आई. कुछ ज़्यादा रिएक्टिव थे जिन्हें कैरोसिन ऑयल में रखा गया, कुछ मॉडरेटली रिएक्टिव थे जो ऑक्साइड का लेयर फॉर्म करते हैं, जो बिल्कुल ही लीस्ट रिएक्टिव है वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे. उसके बाद हमने पढ़ा कि इनका जो नेचर होता है वो जनरली बेसिक होता है, बट टू ऑक्साइड्स Al2O3 and ZnO they are amphoteric oxide because they behave like acid as well as base. और ये आपका NCERT क्वेश्चन भी है जिसमें आपको पूछा जाएगा कि what are amphoteric oxides, give an example. तो वो क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर क्लियर हो चुका है. So students, this topic is completed. The first reaction of metal that is done. Okay students, if you have any kind of doubt regarding this topic, so you can ask me in the next live session. Okay, thank you. Have a nice day.